സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30-40 മാക്സിമം. ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി പലർക്കും അറിയില്ല. കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹൈ ആണ്. ചെറിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറിയൊരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ്, നല്ലൊരു ഏണിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഫോർത്ത് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാങ്കിൽ വരുന്ന സാലറി തന്നെ 2 ലക്ഷം മുതൽ 3 ലക്ഷം ആ റേഞ്ചിൽ വരെ കിട്ടും നമുക്ക്. പിന്നെ നല്ല കമ്പനിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരും. പിന്നെ നല്ല കമ്പനിയിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിലും കൂടുതലാണ് സാലറി സ്കീം വരുന്നത്. ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ റേഞ്ചിലൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആ ഒരു റാങ്കിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 to 15 lakhs അത് കമ്പനിയിൽ നിന്നും പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം വരും പെർ മന്ത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാലറി ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ പെർ മന്ത് ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം, അത് വർഷത്തിലല്ല. അപ്പോൾ അത്രയും സാലറി തരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ മത്സ്യം നേവി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പലർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. കോളേജ് പിന്നെ മത്സ്യം നേവിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല കോളേജുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, സ്പോൺസർഷിപ്പോട് കൂടെ പഠിക്കുക. ഞാൻ പലയിടത്തും ഞാൻ പലരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ കോളേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പേര് കേൾക്കാത്ത കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു, വലിയ വലിയ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ചിലവാക്കി, അതിനുശേഷം ഏജന്റുകൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തു, ഏജന്റ് പൈസ പറ്റിച്ചു പോയി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ആർക്കും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല നല്ല കോളേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. ആംഗ്ലോ ഈസ്റ്റേൺ മാരിടൈം അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗ്ലോ ഈസ്റ്റേൺ എന്ന കോളേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല, ബോംബെയിൽ. അതേപോലെ സമുദ്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാരിടൈം സ്റ്റഡീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോളേജാണ്. അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസായ ഗ്രേറ്റ് ഈസ്റ്റേൺ മാരിടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 7 Island മാരിടൈം ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടും. അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനീസ് അക്വയർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകാം. ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനീസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്പോൺസർഷിപ്പോട് കൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम रजत है और मैं नॉर्थ साइड से यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि हमारे चार साहब ने बोला है कि आप सभी को मतलब जीपी रेटिंग के बारे में बताइए। तो जब हम सी मैन बनते हैं तो सी फेयर की लाइन में 2 मतलब स्टार्टिंग होती है क्रू लाइन में, तो उन्हें जीपी रेटिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। बट आजकल STCW भी करके बंदे आ रहे हैं, मतलब जिन्हें इस फील्ड में आना है, मतलब कम टाइमिंग में 1 मंथ का कोर्स होता है STCW का। जीपी रेटिंग में भी STCW होता है, बट STCW करके भी लोग आ रहे हैं, जैसे लाइक ट्रेनी वाइपर पर आ रहे हैं। तो जीपी रेटिंग भी हम करते हैं। तो जीपी रेटिंग 6 मंथ का कोर्स है और मैंने कलकत्ता से करा है, मैट्री से। तो जीपी रेटिंग बट अलग अलग मतलब इंस्टीट्यूट से हर जगह से होता है, लाइक नॉर्थ साइड में, केरला में, अलग अलग मतलब जगह से अलग अलग इंस्टीट्यूट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने करा है मैट्री से। तो मेरा 2019 में कोर्स हुआ था, तो अभी उसमें चार्जेस लगे थे कि 180 का चार्जेस लगा था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कोर्सेज हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर मतलब फीस भी अलग अलग है, कहीं जगह 2 लाख भी है। तो धीरे धीरे जैसे ही आप जाओगे इंस्टीट्यूट में जाओगे कोर्स करने के लिए, तो फर्स्टली आपको मेन पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। इंस्टीट्यूट वाले मतलब आगे प्रोसेस करते हैं, फिर उसको उसी कोर्स में STCW भी होता है। तो 6 मंथ में आपको इंजन का भी, डेक का भी सब समझाया जाता है। और मर्चेंट नेवी लाइन में 3 लाइन होती है, वो आपको पता ही होगा कि एक गैली होती है, CCMC कोर्स करके आते हैं वो, एक जीपी रेटिंग होती है। जीपी रेटिंग से दोनों काम सिखाए जाते हैं, डेक का भी और इंजन का भी। तो मतलब आप कोर्स करने के बाद सोच सकते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है, आप इंजन में आना चाहते हो या आप डेक पे आना चाहते हो। तो 2 लाइन है, तो दोनों लाइन में मतलब जीपी रेटिंग का आपको मैंने चार्जेस बता दिया है। और आप कोर्स करने के बाद आपको मतलब ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फर्स्टली आप ट्रेनी वाइपर पे आते हो, तो ट्रेनी वाइपर पे आ गए, जो भी आप इंजन में आ रहे हो, जैसे मैं इंजन साइड से हूँ तो बताना चाहता हूँ आपको, ट्रेनी वाइपर पे आता है बंदा। फिर अगली सेल उसकी मतलब जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, वॉच कीपिंग आ जाती है, बंदे के पास सर्टिफिकेट आ जाता है, तो उसके बाद फिर सैलरी हमारी स्टार्ट होती है ट्रेनी वाइपर से। जब एज अ ट्रेनी आप आते हो तो 10,000 से 15,000 आपकी सैलरी होती है। बट जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है वॉच कीपिंग का, तो आप एलिजिबल हो जाते हो कहीं भी सेल करने के लिए। तो आप कंपनीज में जाइए, बढ़िया बढ़िया कंपनीज है अपने पास, जैसे कि हम अभी SISL में सेल कर रहे हैं, तो 7 आइलैंड में। तो इससे भी इम्पोर्टेंट कंपनियाँ हैं बढ़िया बढ़िया। तो सिनर्जी में जाइए, एंग्लो ईस्टर्न में जाइए, बहुत सारी मुंबई में बहुत सारे ऑफिस हैं, मुंबई दिल्ली में। तो आप जा सकते हो, वहाँ पर इंटरव्यू दो और अपना आप मतलब सीमन लाइफ
आप वहाँ से गेन कर सकते हो। ट्रेनी वाइपर के बाद फिर आपके पास सर्टिफिकेट आता है तो आप वाइपर में जाएंगे आगे, मतलब प्रमोशन होगा तो वाइपर में जाएंगे, उसके बाद आप ऑयलर में एज अ मोटरमैन आप सेल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती है। अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग सैलरीज होती हैं। तो आपको मतलब फर्स्टली 6 मंथ के लिए वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आप COP निकालते हो। COP एज अ कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है अपना, तो वो निकाल के आप गेन कर सकते हो लाइफ में। और इफ़ यू नीड टू ज्वाइन इंजीनियर सो 36 मंथ आफ्टर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप इंजीनियर में भी अप्लाई पेपर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। स्टार्ट। तो जैसा कि चार साहब बोल रहे हैं कि सैलरी के बारे में बताइए, सैलरी के बारे में बताइए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेनी वाइपर में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रेनिंग में हमारे को 10 से 15 हज़ार मिलती है। तो वो ट्रेनिंग का टाइम होता है, बट आपके पास एक्सपीरियंस आता है, सर्टिफिकेट्स आते हैं। तो जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है, आप वाइपर में जाते हो तो आप 50 to 60 गेन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप सेलिंग करेंगे, कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपकी सैलरी गेन करती रहती है पर सेलिंग। जैसे कि किसी इंडियन कंपनी की हम बात करें तो वो 10 to 15,000 बढ़ाती है हर सेलिंग। और अगर हम फ़ॉरेन की बात करें तो आपको बढ़िया पैकेज मिल सकता है, जो भी आपका मतलब जैसे जैसे कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस बेस पर आप जा सकते हैं। तो बट आजकल का जो मर्चेंट नेवी का गेम चल रहा है, सभी बच्चे एजेंट के थ्रू जा रहे हैं। तो एजेंट के थ्रू मत जाइए। जैसे जैसे आपको यूट्यूबर बहुत मिलेंगे देखने को, और जैसे हमारे चार साहब यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर बहुत मिलेंगे तो वीडियो बनाते रहते हैं। तो मतलब जो इंजीनियर्स की बात है मतलब वो मान कर जाइए, वो हमेशा मतलब क्रू को गाइड करेंगे कि, और अभी क्रू भी बहुत सारे हैं जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, जो आपकी मतलब एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कि हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे करना चाहिए। बट एजेंट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। एजेंट्स लाइक मतलब आप पैसे भी दे दोगे और आप मतलब आपको जहाज पे नहीं चढ़ाएगा, तो वो ऐसे करते हैं। बट आप किसी भी